help. One should be seeking help if the person alcohol एडिक्शन और ड्रग्स का तो मैंने आपको बता दिया था कि सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है और एडिक्शन क्या आता है. when the things are under your control, when the things are in your control, when you can take the things in a limited amount, when it is in your control, then it is said to be drug abuse or substance abuse. But when the things are not in your control, it means you are into the control of the drug, then it is said to be addiction. समझ आ गया? कल किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या एक बार लेने से भी हम एडिक्टिव हो जाते हैं? यस. इफ समबडी हु हैज टेकन हेरोइन, एक बार भी लिया हो तो उसको दोबारा कशिश होती है लेने की, दोबारा चाहता है कि मैं इसे लूं, उसे उसकी डिमांड बढ़ जाती है. सो दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू इट शुड बी अ thick line. There is a very thin line between once and never, as I told you. So do not delete that thin line, make it more thicker. No means no. You don't have to take means you don't have to take even the first time. Why to experience the shit? You have thousands of good things to experience. Experience those things, not these type of things. So seek help. So if an individual has fallen in the trap of alcohol or substance abuse, the first significant step is to seek help. आप किसी से भी जो भी आपके क्लोज है, the person who is closer to you, to whom you can share, to whom you can convey your things, to whom you can openly say कि I am into this and I just want to get out of it, can you please help me? So the one who is your true friend or true family member will definitely try for you to help you out. Others will make fun. So seek help from the person who is seriously going to help you getting rid of such situations. उसके बाद detoxification, there are many methods of detoxification. You can go for rehabilitation centers. There the process of detoxification is there, and you can remove all the toxins from the body so that the demand जो हमारी body demand करती है कि नहीं I want it, मुझे अभी चाहिए, they go to any extent to fulfill their desires or fulfill their these type of things. So avoid those things and do the detoxification process so that it can be done easily. So detoxification is a significant step in case of alcohol and substance abuse. Detoxification enables an affected individual to stop taking alcohol and other drugs or as quickly as and safely as possible. The detoxification from different categories of drugs such as stimulants, depressants, narcotics, diuretics, etc. Produces different side effects. Detoxification may involve gradually reducing the doses of drugs. Detoxification is extremely significant for someone depending on alcohol because withdrawal can cause delirium. क्या होता है कि जब किसी को किसी चीज की आदत लत लग जाती है, it is very difficult to get out of it. So detoxification, when these type of toxins or these type of things which you are taking regularly, it leaves a bad effect into the body. हमारे बॉडी में ब्लड में इतना ज्यादा होता है कि उसका डिमांड हमारी बॉडी करता है कि वी नीड इट. तो जब हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो वो चीज हमारी बॉडी से वॉश आउट होने लगता है. तो उससे क्या होता है कि जो हमारा रैपिड लेने का जो वो है वो कम हो जाएगा. आई कैन टेक इन 3 hours, I can take in 3 days, then 5 days, then 7 days, then 1 month, then we can leave it also. But if somebody is used to it and he was forcing the person to leave, it's not possible. The person may not leave it. तो ये होता है बिहेवियरल थेरेपी. इसमें क्या होता है कि बिहेवियरल थेरेपी में इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी. इसमें हम किसी को साइकोलॉजिकली बिल्कुल स्ट्रांग बना देते हैं, एकदम मेंटली स्ट्रांग बना देंगे कि कम ऑन भूमि, यू कैन टॉप इनटू फिजिकल एजुकेशन, कम ऑन प्लीज पे अटेंशन, स्टडी व्हाट आई एम सेंडिंग, यू डू दैट, read all the topics carefully, find out difficulties, call me. So I know you can do it, you have that guts, you're so talented. एकदम उसको ऐसे बोल बोल के ना उसको एकदम बना देंगे कि वो बिल्कुल उसके ऊपर ना फोकस करने लगेगा. दिस इज व्हाट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर which is very helpful in making anybody a success or a failure. If somebody is there और जिसका आप रोज बोलते हैं come on you can do it, अरे नहीं तू कर सकता है, कुछ भी नहीं कर ले, तो बहुत आसान है. तो the person's mind will work accordingly. अगर मैं उसी बंदे को बोलता चल चल तेरे बस की नहीं है, नहीं नहीं you cannot do it, come on तू और ये कर सकता है,
नहीं कर सकते. You keep doing it and practicing the same for longer time, and believe me, these things are going to happen. अगर आप पॉजिटिव बोलते हो तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बोलते हो तो नेगेटिव होता है, बिकॉज माइंड उसी हिसाब से काम करता है. सेम वे में जो बिहेवियरल थेरेपी है, जो हमारा डिमांड है फॉर द ड्रग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, if somebody is motivating us not to use this, it's going to kill you, it's going to hamper your growth, it's going to make you a notorious or a bad person in the society. Come on, let's do good thing, take less frequently, stop using it, let's go and divert the mind. तो इस टाइप से हम उसको बिहेवियरल थेरेपी देंगे. तो इस टाइप से वो थेरेपी जो है बिहेवियरल थेरेपी हेल्प द इंडिविजुअल टू मैनेज their thoughts pattern, essentially controlling negative thoughts pattern that may lead to alcohol and substance abuse. नहीं यार, वो मुझे छोड़ के चला गया, चली गई, नहीं अब तो मैं रह ही नहीं सकता, अब तो मुझे बस इसी का सहारा है. You might have seen many videos, people uttering some shit. So what is that? What is that? Is it a necessity? Is it a food which is going to give you nutrition and something that you have to take it for living your healthy life? No, it's not. It's just your ill thinking. So this is what this thought process is refined. When the thought process is refined, you're going to have a pure thoughts. You're going to have the thoughts which is going to help you in leading a peaceful, successful life. So this is why this behavioral therapy is important. Then motivational and enhancement therapy. मोटिवेशनल एनहांसमेंट जो मैंने अभी बताया है कि अगर मैं क्या होता है, विलिंगली और अनविलिंगली, नोइंगली और अननोइंगली आपके पेरेंट्स ऐसा करते हैं, चल यार तेरे बस की नहीं रही, तू तो बेकार बच्चा है, यू आर जस्ट डम, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू आर फिनिश्ड, यू आर नो नथिंग, यू आर जीरो, यू आर बिग जीरो. कई बार टीचर्स भी ऐसा करते हैं. यू माइट हैव सीन, you might have noticed in some of the teachers, they always talk negative. तेरे बस की नहीं है, you cannot do it. Why did you leave studies? Why are you wasting your parents' money? Why you come to school? Why? No, this is a wrong methodology. You can talk the same in some other sense. You can do it. You are a brave child. It's okay. You are suffering from COVID. It's fine. When you are okay, you come and ask me your doubts. I'm there to help you out. Come on, you are a champion. You are a challenger. You can take anything so easily. I know you can do it. It's in your control. Nothing is beyond your control. It depends on your mental status. Have a positive thought. Come on, come with a bang. I know you can do it. ये पॉजिटिविटी है. ये जितना फैलाएंगे उतना ही उसका असर होता है. सेम में मोटिवेशनल थेरेपीज ऐसी होती है कि हम उसको बोलेंगे, उसको समझाएंगे. You can teach the child that whatever it is also a significant form of therapy. It is usually employed in the substance abuse treatment. In this process, a therapist help a patient to tap into their personal motivation to resist drug abuse. उसको पर्सनली बात करना, देख तेरे बच्चे हैं, तेरी वाइफ है, तेरे मम्मी पापा है, वो कहाँ जाएंगे, तू मर जाएगा, तू तेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो तू अच्छा कर, तू छोड़ने की कोशिश कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तेरी फैमिली तेरे साथ है. तो उसको अच्छा लगेगा, हाँ यार, वो रोएगा भी उससे. फिर जब उसको कशिश होगी, उसको जब उस चीज की जरूरत होगी, वो दोबारा हो सकता है वो भूल जाए, फिर हम उसको याद दिलाएंगे, कम ऑन, दिस इज नॉट अ कप ऑफ यू टी, छोड़ दे इसको, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, चल थोड़ा ले ले, चल रहने दे, खेल के आते, क्रिकेट खेलने चलते. तो इस टाइप की हम उससे बातचीत करेंगे, तो ऑब्वियसली द चाइल्ड इज गोइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ. person is going to improve himself. The person is going to get rid of that substance abuse and alcohol abuse. समझ आ रहा है आप लोगों को? Then medication. There are some medicines which can be, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो लोग सिगरेट लेते हैं ना, उनके लिए निकोटिन करके आता है, या कुछ और जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके लिए भी कोई मेडिसिन आता है, जिसको लेने के बाद ना, इफ समबडी ट्राइज टू ड्रिंक, वो वॉमिट कर देता है. जितनी बार वो पीने की कोशिश करेगा उतनी बार वो वॉमिट कर देगा. So such medications are also going to help you in getting rid of such type of things which are helping you when you are craving is happening. जब भी आपको inclination होगा तो वो मेडिसिन आप ले लो, तो आप जब उसको लेने की कोशिश करोगे तो आप वॉमिट कर दोगे, आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. निकोटिन यही करता है. जब आप सिगरेट पीने की बहुत ज्यादा आदी हो जाते हैं तो निकोटिन लेते हैं, तो हमें धीरे धीरे निकोटिन हमारे प्रोसेस में आता है और धीरे धीरे सिगरेट लेने से हमें रोकना शुरू कर देता है, हमें जरूरत नहीं होती नहीं सिगरेट की. तो इस टाइप से इंफॉर्मेशन
Inform to your friends about your decision to stop using drugs or alcohol. You should inform those friends who are close, who will appreciate this effort by you. Talk to them, tell them that okay, I've decided to live it. It's going to ruin my life. I've decided. उसमें से ऐसे लोगों से बिल्कुल शेयर मत कर, अरे कुछ नहीं रखा लाइफ में, एंजॉय कर, कार छोड़ने की बात कर रहे तू, चल चल आजा मेरे साथ आजा, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल बात नहीं करना प्लीज। वैसे लोगों से बात करो जो रियली आपको हेल्प करें कि आप इन चीजों से गेट रीड ऑफ हो जाएं। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन इन्फो, उसके बाद था लीन ऑन क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। द वन, एक फैमिली में 5 लोग हैं, उसमें से हो सकता है आपकी दीदी आपकी बहुत क्लोज हो सकता है आपकी ममा आपकी बहुत क्लोज हो सकता है आपके पापा आपके क्लोज हो, बाकी लोग नहीं। हो सकता है आपके दादू आपके क्लोज हो और बाकी लोग बिल्कुल भी आपको बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपने पिया। यू विल बी बैंग्ड, योर फेस विल बी swollen, your mouth will be broken, your nose will be broken if you share such things to them. This is why it is saying to lean to the close friends and close family members, the one who can on whom you can rely. Talk to them and share your views, how you are feeling, why you want to live it, so that they can also be a part of support system. Build a sober social network. Companion, सुना है आप लोगों ने? A rotten apple can decay many, कैसा करके है ना, एक सड़ा सेब सबको सड़ा सकता है, पूरे बास्केट ऑफ एप्पल को सड़ा सकता है। तो वही है कि अगर आपका सोशल नेटवर्किंग होगा तो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, खिल्ली नहीं उड़ाएगा, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। क्या आप कभी इस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं कि ड्रग अब्यूज एंड ऑल दैट। रिमेन अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स हु स्टिल इंडल्ज इन सब्सटेंस अब्यूज। उन लोगों से हाथ जोड़ के दूर रहो, चाहे कितने भी क्लोज फ्रेंड्स हो, चाहे कितने भी क्लोज फ्रेंड्स क्यों ना हो, उनका बर्थडे हो या उनकी मम्मी पापा का बर्थडे हो, अवॉइड गोइंग देयर, अवॉइड टॉकिंग टू देम। हैप्पी बर्थडे भाई, वो बोलेगा यार पार्टी में आ जा, भाई नहीं है तू, दोस्त नहीं है तू, चल आज के बाद दोस्ती खत्म, बस इतनी सी बात कर दी तूने, ये बात वो बात। दिस इज द टॉक, आई नो द एडोलेसेंट टॉक्स। बस ऐसे तो हम सब शेयर करते थे, आज तो इतनी सी भी मेरी बात नहीं मानेगा तू मेरे पार्टी में। यू आर नोइंग इट दैट दिस इज फायर एंड व्हेन आई एम गोइंग टू पुट माय लेग इनटू इट, इट्स गोइंग टू बर्न, देन व्हाई टू पुट योर लेग इनटू इट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाथ जोड़ के बोल दो कि मेरे दो द दादा इज जी और नाना जी इज नो मोर, you can tell them that my dadaji is severely ill, I cannot leave him, we are at hospital, we cannot come, मेरे दोस्त के सर में बुखार हो गया है, मेरे दोस्त के बालों को बुखार हो गया है, I cannot come. But give any excuse, but don't go to those friends who are indulged into such things. They will definitely force you, they will definitely mold you, they will definitely emotionally blackmail you to do. तेरी ना वो बात ना तेरे पापा को बता दूंगा और तूने नहीं लिया तो अब तो लेना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, फंस गए नहीं तो पहले तो सारी बातें सबसे शेयर ना करें, अगर करें तो उनसे करें जिन जो लगे कि ये मेरी जान से भी ज्यादा है, ये मेरे को कभी डिच नहीं करे। नहीं तो ये ब्लैकमेल में आजकल के एज में बहुत कुछ होता है, स्पेशली एट एडोलेसेंट एज ग्रुप्स ब्लैकमेलिंग हो जाती है। व्हेन वी आर इनटू समबडीज रिलेशनशिप, दोस्ती, क्लोजनेस, हम उसके साथ ना बियॉन्ड द लिमिट्स चले जाते हैं। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट्स के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, हमारे पास प्रूफ हो जाता है मोबाइल में, हमारे पास फोटोज हो जाते हैं। प्लीज उतनी ही जितने में आप हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके माँ बाप भी सेफ रहें आपके साथ। डोंट डू एनीथिंग टू कम इनटू क्राइम पेट्रोल, बी अ गुड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशन। तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं। सो रिमेन अवे फ्रॉम दोज पीपल हु आर इंडल्ज इनटू such substance abuses, so that you do not get into touch with them and you do not start it again. Involve yourself in a destructive activity. Whenever the craving happens or occurs, do something which distracts you. Talk to your friend जो बहुत मस्ती कराता है, बहुत हंसी दिलाता है, बहुत मजा कराता है. In the previous classes, I have some students who used to call me for their such things. I should not reveal their names. So these children used to call me, sir मैं ना इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, can you help me? तो मैंने बहुत सारे करीब करीब 9 students, 10 students थे जिनकी मैंने हेल्प की, and they come openly to me, some were boys, some were girls, that this child is distracting me, this child is disturbing me, this child is तो मैंने कई बार उनको बहुत what should I say,
लाइव एग्जाम्पल्स ले लेके उन बच्चों को समझाया कि आप जो कर रहे हो गलत है. द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद योर सिस्टर. हाउ यू विल रिएक्ट? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, मतलब इसका भी भाई तेरा मुंह तोड़ देगा. सो सच थिंग्स हैपनिंग दीज डेज. सो प्लीज स्टे अवे, बी सेफ. उसके बाद था इन्वॉल्व योर सेल्फ एट डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज. वो एक्टिविटीज करिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है. डिस्ट्रैक्टिंग का मतलब नहीं कि गलत करने चले जाओ, ये अच्छा है मैं अल्कोहल छोड़ रहा हूँ तो कुछ और शुरू कर दूं, नहीं. क्रिकेट खेल लो, बात कर लो, किसी साइकियाट्रिस्ट से टॉक कर लो, कोई वीडियो देख लो, कोई मूवी देख लो, कोई अच्छे फ्रेंड से बात कर लो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर से बात कर लो, संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देख लो, सोनू शर्मा की वीडियोस देख लो, बहुत है. आधा घंटा तो कम से कम आप डिस्ट्रैक्ट हो गए उस चीज से. कैरम खेल लो अपने दोस्तों के साथ यार, कम ऑन, अपने फैमिली मेंबर्स के. टॉक टू योर ममा एंड पापा. You can do all these things. It's so easy, but it's the mental blockage which is not allowing you to do all these things. Talk to your friends or family member when craving occurs. वही बात है, एक ही चीज है, घुमा फिरा के बार 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 एक ही चीज. कह रहा है कि जब भी क्रेविंग हो रहा है किसी से बात करो जो आपको लंबा लंबा लेक्चर दे, समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है, तो बात तो करो. आधा घंटा तो खराब करो. ये संकेत. Who is Sanket? Is there anybody who is Sanket in physical education? Yeah, you want to ask some question? Sanket, you are asking something? Okay. Is there any doubt in these chapters? Any doubts, बेटा? Yes, no में जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. नो सर. ऐसे फिंगर उठाओ, हाथ एक माइक है उसको ऐसे टैप और फिर बोलो यस सर, नो सर, दिस टॉपिक सर. नो सर. Somebody No, is sir. speaking, but the child is not audible properly. Okay. Simran, no sir. Anybody? Can you hear me, sir? Yeah, I can hear you now. No, sir. Again, I'm not able to hear you. Who is the child? What do you want to ask? Sir, no, sir. Okay. Any doubts? You want to ask something? Anybody who wants to ask something? और ये 6th सब्जेक्ट का एग्जाम होगा. 6th सब्जेक्ट का एग्जाम होगा. Is this the question? Was that the question? 6th सब्जेक्ट का एग्जाम होगा. Yes? यस सर. हाँ, बिल्कुल होगा अगर आप देना चाहोगे तो. नहीं देना चाहोगे तो नहीं होगा. और आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए. इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता लगता है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स, व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच यू डोंट नो, यू शुड पे अटेंशन ऑन. तो फिर क्या होगा, मान लो कोई सब्जेक्ट आपसे नहीं चलते. आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन चेंजिंग देयर स्ट्रीम फ्रॉम दिस टू दिस, और चेंजिंग फ्रॉम कंप्यूटर टू फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग फ्रॉम मैथ्स टू फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग फ्रॉम साइकोलॉजी टू फिजिकल एजुकेशन. कब? सितंबर अक्टूबर में. More than half of the syllabus is gone. Though the physical education was their 6th subject, but they never paid attention to it. और तब आते हैं जब 8 या 9 चैप्टर मेरा खत्म हो चुका होता है, 2 या 3 चैप्टर्स रहते हैं. तो उनके लिए ना पता क्या होता है, वो पहाड़ से गिर के खजूर पे अटकने वाली बात हो जाती है. दे बिलोंग्स टू नोवेयर. ना तो उनको मैथ समझ आया और ना अब फिजिकल एजुकेशन समझ आएगा. सो आई शुड से yes, you should attempt, because if you fail, fair enough. If you get less marks, fair enough, but you are practicing. So at the end of the year, it will become easy for you. अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे से मार्क्स नहीं आते तो this physical education will be counted, because CBSE has given you the so many guidelines कि कौन कौन से एग्जाम्स कंसिडर करेंगे, और आपने कभी दिया ही नहीं, बाद में आपने स्ट्रीम चेंज किया, तो फिर उस समय वो आपको थोड़ा थोड़ा मार्क्स देंगे कहीं कहीं से उठा के. 40 मार्क्स जो दिए गए हैं इस बार, तो आई वांट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ले लो. 40% मार्क्स दिए गए हैं जो उन बच्चों ने कोई एग्जाम ही नहीं दिए, क्योंकि उनको फेल नहीं कर सकते. तो इसलिए मैं चाहूँगा कि यू शुड. ओके, सो वी आर डन विथ चैप्टर 10, राइट?
Yes, sir. अच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे अभी कैमरा ऑन करें और जो माइक है ना उसको टैप करें और बोलें यस सर या नो सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Out of 32 it's 14 और 17 इज यस सर। अभी भी हैं कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं बोला आंसर, बट छोड़िए उनको, रहने देते हैं, इतना फोर्सफुली क्या किसी को कुछ कहना। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आस्था हमें एक कोई मोटिवेशनल स्टोरी बताए। आस्था, एम आई ऑडिबल टू यू? एज आई टोल्ड यू वी हैव अ मस्ती क्लास टुडे। Asta, you have some motivational story to share? No, sir. Anybody who wants to share a motivational story? A section students should study themselves, and if they find any problem into all these chapters, we have done 1, 2, 3, 4 and 10. 5 chapter is done. Yeah, 5 chapter is done. Half syllabus is done. अब हमें जुलाई में कुछ भी नहीं करना है, विल डू द रिवीजन, और अगस्त में हमें एक चैप्टर करना है, विल सी कौन सा चैप्टर है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एनीबॉडी हु हैव सम मोटिवेशनल स्टोरीज? नहीं है किसी के पास? सब डीमोटिवेटेड हो? किसी के पास कोई स्टोरी नहीं है? ओके, आई विल शेयर अ स्टोरी विद यू पीपल। मुझे पता है लास्ट में मुझे ही बोलना पड़ेगा। विख्यात, आपके पास है क्या? आई कैन सी सम ब्यूटीफुल टीथ, शाइनिंग टीथ। यू डोंट हैव? भूमि, you have? Myra, you have? No, sir. No sir। क्यों भाई? ओके, छोटी सी स्टोरी है मेरे पास, बड़ी प्यारी स्टोरी है, मैं शेयर करता हूँ। वंस इन अ विलेज, कभी कभी हिंदी कभी कभी इंग्लिश में चलेगा तो मज़ा आएगा, कई बार इंग्लिश के वर्ड नहीं आते होते। फिजिकल क्वेश्चन टीचर्स हैं, इतना तो होता ही है, सो फेयर इनफ। So once in a village there were two elderly couples, one couple living at a village. तो वहाँ पे एक जो बेगर होता है वो he daily used to come and he asked for chapatis. वो कभी नहीं बोलता था कि मुझे कुछ दो, नहीं, he always asked for chapatis, क्योंकि ये दोनों बहुत बूढ़े थे और अकेले रहते थे। ठीक है, अकेले रहते थे तो आपको पता ही है, बूढ़े लोग अकेले रहते हैं मतलब उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनका इनकम नहीं होता, या थोड़े बहुत कोई Sir, you are not audible. पुराना से Am I audible? तो Yes, उसको वो रोज आता था और दे वर क्वाइट फेड अप विद सच थिंग्स। वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे कि यार ये रोज आके हमारे चपातीस में से ना 2-3 चपातीस ले जाता है, क्योंकि अब वो खाएगा तो अपना पेट भर ही खाएगा ना, एक चपातीस देना भी किसी को अच्छा नहीं लगता। ये तो हो ही, अगर मैं मतलब कोई बेगर आके आपसे चपातीस मांगे या खाने को मांगे तो आप इतना तो कोशिश करोगे कि आप उसे भरपेट खिला सको। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, कई सालों तक। एक बार बुढ़िया के मन में ख्याल आया कि मैं ना इसमें पॉइजन मिला के दे देती हूँ रोटी में, ताकि यार ये, क्योंकि 2 बंदे तो हमें, तीसरे बंदे का भी खाना अब आजकल ऑलमोस्ट डेली बनाना पड़ता है, क्योंकि ही डेली कम्स एंड ही आस्क्स फॉर द चपाती। एक्सक्यूज मी। सो ही डेली कम्स एंड आस्क्स। तो उसने ऐसा सोचा, मैंने बोला था ह्यूमन बीइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन थॉट्स। एक मैंने ये जब क्लास शुरू की थी तो ये बोला था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एक बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसमें ये लाइन है कि ह्यूमन बीइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन थॉट्स। क्या सोचता है उसके साथ ऐसा ही होगा या वो ऐसा ही बन जाता है। उसने सोचा पर ऐसा किया नहीं,
जिस दिन उसने सोचा कि मैं उसके चपातीज में पॉइजन मिला दे, सॉरी देयर वाज सम प्रॉब्लम टू द नेटवर्क, कॉल ड्रॉप हो गया था। सो उसने ऐसा सोचा पर उसने किया नहीं, उसको दया आ गई, उसने नहीं किया। और उसके पहले 1-2 दिन पहले, जहर मिलाने से 1-2 दिन पहले उसने उसको बुरा भला भी कहा, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, मत आओ, वी डोंट हैव मोर चपातीज टू गिव यू, कल से मत आना। उसको कुछ मार भी दिया, उसके सर में, उसका सर भी फूट गया उस बेगर का, बट ही यूज्ड टू कम, वो उसके बाद भी आता रहा। फिर उसने ऐसा सोचा कि आई शुड पॉइजन हिज चपातीज, पर उसने ऐसा नहीं किया। चलो यार, दे दिया चपातीज, वो चला गया। वो क्या करता था, जो बेगर था वो चपातीज खा भी लेता था और एक चपाती उसमें से बचा के शाम के लिए लेके जाता था। उसका डेली का रूटीन था। वन डे द सन ऑफ दिस कपल वॉज स्टेइंग अब्रोड, या कहीं रहता था जहाँ पे अकाल पड़ गया, युद्ध हो गया, कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई जहाँ पे उसको अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। वहां से वो भागा और बहुत थक चुका था, he was about to die because of hunger and all that. So he met the same beggar under a tree. The same day when she was planning to poison her chapatis, his chapatis. The same day, एक चपाती जो बचा के लेके गया था, वो चपाती उस कपल के बच्चे को दिया कि मेरे पास बेटा यही है, आप ये खा लो। उसने वो चपाती जैसे भी रूखा सूखा या नमक के साथ जैसे भी खाया, उसकी हंगर जो थी थोड़ी सेटिस्फाई हुई, और फिर वो चलने के लिए एनर्जी जुटा पाया और चल के अपने माँ बाप के पास आया। और उसने सारी स्टोरीज बयां की कि मम्मा, मैं जहाँ रहता था वहाँ युद्ध छिड़ गया, या कोई लड़ाई हो गई, या कोई राइट्स हो गए, फिर मैं वहाँ से भागा, और वहाँ से मैं भाग के आकर के मैं एक पेड़ के नीचे असहाय बेसहारा मरने की कंडीशन में भूख से तड़प रहा था। फिर वहां एक आदमी ने, जिसके सर पे एक पट्टी बंधी थी और वो बहुत ही गंदा था देखने में, और वो कुछ ऐसा दिखता था और वैसा दिखता था, और उसने मुझे एक चपाती ऑफर की, और उसने वो चपाती ऑफर की और उसको खा करके मैं अपनी जान बचा पाया और मैं आज जिंदा आपके सामने हूँ। तो द कपल क्राइड लिसनिंग टू दिस स्टोरी कि अगर हमने चपातीज में पॉइजन मिला दिया होता तो शायद आज हमने अपना बेटा खो दिया होता। कैन समबडी टेल मी द मोरल ऑफ द स्टोरी? उसके बाद मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद उस बेगर को बुलाया गया, ठीक है, और उसको फैमिली मेंबर बना के ये लोग अपने पास रखने लग गए, और उसे बोला कि अब आप बेगिंग नहीं करेंगे, हम सब मिलके कुछ हार्ड वर्क करेंगे। जिसको लेबर आता है लेबर करेगा, कोई फार्म में कैटल वगैरह वो करेगा, ग्रेज करेगा, कोई कुछ करेगा। दे डिसाइडेड देयर वर्क्स एंड दे वर लिविंग हैप्पीली। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? यस विख्यात। मेहनत करने वाले की भी हानि होती है। यस। So the moral is that we should never think bad for someone because the same can happen to us also. Any more moral can be said? Anybody who can try some more morals of the story? कोशिश करने वाले की भी हानि होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर इसमें ऐसा कोई कोशिश नहीं था। चलिए ठीक है, ले लेते हैं। Anybody else want? देखो, आप लोग आंसर किया करो। I'm not going to kill anybody. Please answer. If you don't know, then also you try it. क्या हो सकता है? What we give come back to us. यस सर, जो हम कर्म करते हैं वो हमें वापस मिलते हैं। Yes. कर्मों का फल जरूर मिलता है। You can say this also. कर्मों का फल as it is मिलता है। What we throw in the world, it come back to us the same day or after some days. But it is going to come back.
So why not to spread positivity? Why not to spread humanities? Why not to spread क्या बोलते हैं उसको, love, affection and care? Why not to spread positivity? क्योंकि जो भी हम करेंगे वो हमें मिलेगा. ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे वो हरिश्चंद्र की स्टोरी सुन लो या किसी की भी, जिसको उसके कर्मों का फल नहीं मिला हो. तो इसीलिए कह रहा हूं कि कर्म सुधारिए, टीचर्स की बात मानिए, और जो चीज कहा जाता है करिए. एक वीडियो ऑन करने से, एक यस सर नो सर बोलने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला. हमारी सैलरी तभी भी आती रहेगी, पर हमें अच्छा लगेगा आपको समझ आया. उससे भी अच्छा लगेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आया और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ. दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बूस्ट अस, एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी. Because we cannot eat boost, we cannot drink boost, but yeah, questioning, interrogative methodology, interrogation, innovative methodologies, asking questions and replying, these are the only boost to the energies of the teachers. So come with a bang. Mane JT, Avni Singh, ये लोग भी cameras on कर सकते हैं, okay, because what we throw is going to come back to us. Any more stories from your side? Because we have done, our syllabus, nothing is left. Yeah, Simran is there. Please, Simran, happy to hear you. Yes, sir. Sir, I heard by a spiritual channel. Okay. सर थोड़ा बहुत लॉजिक से थोड़ा कुछ पार्ट में मिस कर दूंगी, बिकॉज मैंने सुना था, काफी टाइम हो गया उसे. कोई इशू नहीं है, आप बोलो. सर इट वाज अबाउट, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ लाइब्रेरी. तो वो एक बुक में पढ़ते हैं कि गॉड हमारा टेस्ट बिल्कुल वैसे लेते हैं जैसे एक सिल्वर स्मिथ एक सॉलिड सिल्वर बनाता है. तो ऑल ऑफ देम गेट कंफ्यूज दैट ये कैसे पॉसिबल है. तो फिर वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए वो खुद सिल्वर स्मिथ के पास जाते हैं. तो सिल्वर स्मिथ वो सिल्वर बना रहा होता है. तो वो उन्हें कहते हैं कि आप हमें पूरा प्रोसेस साइड टू साइड वो भी करते जाइएगा, बताते भी जाइएगा कि आप कैसे बना रहे हो सॉलिड सिल्वर. तो वो कहता है इट्स ओके. तो वो उसने सिल्वर को लावा में डाला होता है जो प्योर नहीं होता है. तो वो कहता है कि हमें सबसे पहले सिल्वर को लावा में से निकालना होता है ताकि वो एकदम प्योर बन जाए उससे. तो वो उसे रिलेट करते हैं कि गॉड कैसे इससे रिलेटेड है. तो फिर उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जस्ट एज अ सिल्वर स्मिथ जो सिल्वर को लावा में से निकालता है सबसे पहले, उसी तरह गॉड भी सबसे पहले हमारा टेस्ट लेने के लिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स डालते हैं दैट इज मच रिलेटेड टू दैट लावा. उतनी वो कठोर होती है जिससे हमें गुजरना होता है. तो वो सबसे फर्स्ट स्टेज होता है. और उसके बाद जब वो लावा में से जब वो सिल्वर निकल जाता है तब एक पॉइंट आता है जब वो सिल्वर सॉलिड होने वाला होता है, वो कंप्लीट होने वाला होता है. तो उस प्रोसेस में बस वो एक पॉइंट आता है जब हम देख सकते हैं. तो वो वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड हिम, तो फिर वो कहते हैं कि वो एक ही पॉइंट होता है जब हमें उसे देखना होता है कि वो सिल्वर रेडी हो जाता है. तो वो स्टूडेंट पूछता है वो पॉइंट कौन सा होता है. तो वो सिल्वर स्मिथ कहता है कि एक पॉइंट आता है जब वो सिल्वर इतना ज़्यादा क्लियर होता है कि मुझे अपनी रिफ्लेक्शन उस सिल्वर में दिख रही होती है. तो उसका मतलब वो सिल्वर रेडी हो गया है. तो अगर इसे रिलेट करें तो स्टूडेंट्स ये निकालते हैं कि उन सारे प्रोसीजर्स के बाद, उन सारी प्रॉब्लम्स से हम जब निकलते हैं तब तक गॉड हमें तब तक चूज नहीं करते जब तक उन्हें हमारे अंदर उनकी जैसी रिफ्लेक्शन नहीं दिखती. तब तक वो सिल्वर पूरा नहीं होता. तो वैसे ही हम भी एज अ कंप्लीट ह्यूमन पूरे नहीं होते जब तक हमें गॉड जैसी रिफ्लेक्शन नहीं दिखती. तो फिर वो जब तक हम प्योर नहीं हो जाते बाय हार्ट, बाय डीड्स, बाय कर्मों से, अपने दिल से, अपने माइंड से, जब तक प्योर नहीं हो जाते तब तक हमें गॉड अपने जैसा रिफ्लेक्शन नहीं देख पाता और वो चीजें नहीं होती. सो एक्सीलेंट, वेरी गुड. दिस इज समथिंग which is really amazing said by Simran and I am impressed with it.
वेल सेड सिमरन, गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये ऐसा ही होता है हर जगह हर वक्त। गॉड हमें फेल करके भी ना हमारी टेस्ट ले रहा होता है। I will share a story of mine when I was in army school. I was very good student. I should say this because I was getting more than 85, 90% marks. Even my master degrees, I have got 74% marks. So you can say I was good student of my time. So I got, it was a UT or it was a class test. I don't remember that. It is a matter of 2001. So that time, my Hindi teacher took my class test, and I had big hairs. I used to do this thing. Even you can see me in school. I used to do this. मैं ये करता रहता हूँ. तो she was sitting facing the window, और विंडो में ना आर्मी स्कूल के उसमें बड़ा प्यारा ब्लू कलर का ग्लास लगा था, तो my reflection was going there. So when I was doing this ना, it was becoming a slap at my back. So the teacher thought that I'm showing my slap to her. So she gave me 2 point some marks, 2.5 marks. So I was fail into that. And I was amazed to see that I'm fail into Hindi. How come that is possible? I'm from UP and I can be fail into Hindi? Not possible. मैं गया मैम से बोला, तो मैम ने क्या बोला? The answer of teacher was, हाँ बेटा, टीचर को थप्पड़ दिखाओगे तो फेल ही होगे. And ऐसा लगा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, because I was a very decent student of physical education, games, sports, and always try to bring laurels to school. फुटबॉल में, बैडमिंटन में, स्केटिंग में, ये मेरे मेन गेम्स हुआ करते थे. तो कभी कभी बास्केटबॉल में भी चला जाता था जब कोई प्लेयर नहीं होता था. तो मैंने बोला कि मैंने कब आपको स्लैप करने के लिए बोला, दिखाया? बोला मैंने देखा था जब तुम. मैंने बोला मैम मेरी आदत है ऐसे करने की, और मैं ऐसे धीरे धीरे कर रहा था कि आप मेरे एल्बोज को ना देख लो, और आपको लगा कि मैं ऐसे स्लैप दिखा रहा हूँ. तो मार्क्स कैसे कटे थे पता? ये लाइन टेढ़ी है, ठीक है, ये हिंदी के ऊपर जो हम एक लाइन डालते हैं ना, वो टेढ़ी है, तो मार्क्स कट गया. ठीक है, छोटी की मात्रा डली, छोटी की मात्रा जो थी वो टच नहीं कर रही है ऊपर वाली लाइन को, तो मार्क्स कट गया. Then I apology. I said sorry, ma'am, if you felt that, but you know me better from so many years. You people are there and you know my this thing. कोई मेरा आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है स्कूल में. तो उन्होंने मेरी क्लास टीचर से शिकायत की, क्लास टीचर ने मेरा पता है क्या बोला कि ये बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता. मैम डॉक्टर गीता सिंह जो टीचर थी, वो मेरी क्लास टीचर थी, उन्होंने बोला कि ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, आपको जरूर गलती हुई है, ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता. इन फ्रंट ऑफ मी शी टुक माय साइड, एंड इट वाज अ मैटर ऑफ आप समझ सकते हो कि मुझे कितना गर्व महसूस हुआ होगा कि मेरी क्लास टीचर ने मुझे ऐसा बोला कि ही कैन नॉट डू इट. ऐसी छवि बनाई है अपनी. एंड आई गॉट 8.5 into that test. After all this happened, she rechecked my Hindi paper and she gave me 8.5 out of 10. तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी छवि बनाइए. मैं आपको बताऊं, फेवरेटिज्म जो होता है ना, वो किसी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. जो बच्चा आएगा, मुझे आंसर करेगा, वो बच्चा उसका नाम मुझे याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? ऑब्वियसली हो जाएगा. जो बच्चा क्लास में आता है, मैं केवल 8 या 10 बच्चों को स्क्रीन पे देख सकता हूँ, जिसमें से 3 बच्चे रोज आंसर करते हैं, ठीक है, बाकी बच्चे सो रहे हैं. I cannot see their faces. They never. सर यू आर नॉट ऑडिबल. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. After that, we don't have any. Just a minute. Let me. सर नहीं.
So I guess I'm audible now. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So when you Yes, when sir. you reply, when you talk, when you become favorite, when you are in touch with the teacher, you definitely is going to be benefited. I'm teaching 12th class in global school also, and I have sent the CBSE questionnaire to them कि आप इसे रिवाइज करो, आप बहुत अच्छे मार्क्स आपको आएंगे. I did the same thing when Praveen sir was teaching the previous lot of physical education in our school, public school. There also I used to send lots of material, though I'm not teaching them, but I used to send them a lot of material so that they can score good marks. So that is my moral duty, moral values, which is there. आप मुझे एक बच्चा, when I was teaching into 2019, उस बच्चे ने ना, he abused me and I saw that he is abusing me. You know what I did in return? I called him at my teaching desk and I smiled and I said, thank you so much. He said, why, sir? मैंने, you know the reason. I don't want to expose you in front of the class. नहीं, ये तो गलत बात है, आप मुझे बताओ क्यों. मैंने, बेटा आपने मुझे जो गाली दिया था उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ. उसके बाद उसने बहुत देर मत्थापच्ची की, नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था. मैंने बोला आपने ऐसा किया था, अगर आपने नहीं किया था ना तो आई एम सॉरी, आप जाके बैठ जाओ. ही वेंट देयर, सेट. नेक्स्ट डे ही केम टू मी एंड ही सेड, आई एम सॉरी सर, मेरी गलती थी, मैं ना थोड़ा एग्रेसिव हो गया. मतलब पर मैंने आपको कुछ नहीं कहा. आई थैंक्ड यू. मैंने कोई वीपी, किसी प्रिंसिपल या किसी क्लास टीचर से कोई शिकायत नहीं की. कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई? बोला नहीं. मैंने बोला ठीक है, अगर मेरी इमेज आपके माइंड में इतनी है तो आई कैन नॉट चेंज दैट, बट या आई विल कीप डूइंग माय जॉब व्हिच इज टीचिंग यू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज, imparting you the best of knowledge. So this is what every human is a product of his own thoughts. कौन कैसा सोचता है, क्या करता है, क्या बनता है. आज से अगर आरव ये सोच ले कि मुझे फिजिकल एजुकेशन में नहीं, हर सब्जेक्ट में टॉप करना है, लेट मी टेल यू, nobody is going to stop him from getting that. Nobody, no one, even his thoughts cannot stop, because his one thought is promptly working on getting on the top. Not getting on the top means achieving the heights in the world. It's all about thoughts. बचपन से हमें सिखाया जाता है दिस इज केक, और बचपन से हमें पता जाता छी याक दिस इज काउ डंग. लुक्स लाइक ऑलमोस्ट द सेम. थोड़ा एक पॉलिश्ड होता है, थोड़ा एक ऐसा होता है, but the shape is almost the same. Why it happens? Because it is taught. It is occupied the mind. This is what I mean to say. Cow dung is the negative thought and cake is the positive thoughts. When you have a group of positive thoughts, you're going to achieve heights in your life. When you have a group of a bunch of negative thoughts, you're going nowhere. You'll be indulged into negative things. You're going to waste your time. You're going to kill your time. You're going to do all the idiotic things which is not required as a student. As a student, you need focus. You need respect. You need moral values. You need concentration. You need, time management. These are the important things you need. You don't need anything except these. बहुतों को मैंने रोते देखा है. क्या कहते सर आपकी बात मान लेते तो आज हमें ना इस वाले कॉलेज में एडमिशन मिला जो सबसे गंदा कॉलेज है. उसमें नहीं मिला जिसमें हम चाहते थे. तो ये टाइम है. 10 तक तो आप ऐसे ही बचपने में निकाल लिए. Now it's time for result orientation. What do you want to achieve? We'll start from here. आज तक जो पढ़ा वो बोर्ड का एक रहता है कि 10th में कितने परसेंट आए, बट डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुल गिर जाएगा या पुल फ्लाईओवर कुछ साल चलेगा, वो आपके अभी के नॉलेज से डिपेंड करेगा. आप कितना अच्छा बनना चाहते हो, कितना कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, ऑल डिपेंड्स ऑन दिस. स्टडी फ्रॉम दिस टाइम, 11th 12th and then entrance and then becoming a doctor, an engineer, or whatever your wish is. Flying a plane or crashing a plane, all in your hand. So decide your future. Come with a bang. Do not switch on your camera. I have nothing to do with that. But grasp the best of the knowledges from each and every teacher. I just wish I have utilized half an hour on giving these type of lectures and stories and all that. I just wish this much is enough for me.
Because in reward, nobody is going to give their properties to me. Nobody is going to tell their parents, पापा सर ने हमें मोटिवेट कर दिया, आज अपना द्वारका का फ्लैट सर को लिख दो. It is not going to happen with me at any phase of my life. But what I can get is the best, that when you are going to Mumbai or at Delhi airport, a student of yours is coming, holding your hand, taking you to a abandoned place, removing his cap and holding your feet. That's the best thing a teacher can get. वो 2-3 स्टार लगा के एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहा था, and I was going for a national. He saw me and he came to me or he hold my hand. My heart was like, oh my God, मैंने क्या किया जो is catching my hand. And I was not recognizing him because the टोपी was this way, पता ही है आपको, और बड़ी बड़ी मूछें, and he was so very muscular and all, and I was so scared कि मैंने किया क्या है जो. I was continuously asking कि tell me my mistake, why you holding my hand, why you taking to that place. I was getting scared also. पुलिस वाली बात है भाई. He took me there and hold my feet and said, thank you sir. आपके मोटिवेशन की वजह से ना मैं उसी दिन अपने आप को चेंज किया, दोस्तों के साथ जाना बंद किया, पढ़ाई अच्छे से की, और मैंने यूपीएससी क्रैक की, और आज मैं ये हूँ. This is what you can become. It's all your mental status. You can become whatever you want to be. It's all about your thoughts. Nothing else is in the world which is going to stop you from getting your heights. Becoming a doctor, becoming an engineer, becoming a pilot, becoming whatever you want. Abdul Kalam ji, he used to sell newspaper. His father used to catch fishes for his survival. वो अब्दुल कलाम जी न्यूज़पेपर बांट के और उसके बाद अपनी पढ़ाई करते थे. इतना गंदा लाइफ था उनका. आपकी लाइफ में ऐसी दिक्कत है क्या? आप अगर बोलो मुझे आईफोन चाहिए तो पापा विल जस्ट से कि यार 1-2 महीने रुक जा, अभी दिक्कत है. बट या फिर आईफोन 12 प्रो नहीं दिला के, मैक्स नहीं दिला के, 11 तक दिलाएंगे, पर दिलाएंगे जरूर. दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग फॉर यू. व्हाई डोंट यू डू योर बिट फॉर योर पेरेंट्स? Do it. Get what you want to achieve. That's the biggest asset a parent can have, a successful child. Salute. नमस्ते, प्रणाम. आप लोग, अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, अब आप जा सकते हैं. और प्लीज अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को अच्छा बनाइए. कुछ नहीं रखा बुरा बनने में. एक थप्पड़ लगा दिया, उसके लिए आप एक बहुत ही गंदे इंसान हैं. आपने साइड से किसी को हक कर लिया. I'll share a story of Najafgarh. I was purchasing a book for my child. कोई जीके की कोई बुक थी, वो मैं खरीद रहा था. And there was वो रेडी रिक्शा वाला जो बोस्ड होते हैं, he was talking to that book shop. तो he said कि ये बुक दे दो. उसने बोला भैया 1300 की हो गई. उसने बोला मेरे पास तो 600 ही है, आप इसमें से 600 की बुक निकाल लो. तो उसने बोला कि पापा आप तो मेरी मेन बुक्स तो ले ही नहीं रहे हो, मुझे नहीं चाहिए बुक्स, सारी लौटा दो. बेटा नहीं समझ रहा, पर पापा को तो वही इतना लोड ढोने के बाद 50 रुपये 150 रुपये मिलते होंगे, तो उसने दिन भर मेहनत करके 600 रुपये कमाए होंगे. इट वॉज ओके कि बाकी की किताबों कल परसों ले लेता. आई वॉज हियरिंग टू द कन्वर्सेशन. आई आज द शॉपकीपर, अशोक क्या बात है भाई? तो बोला ऐसे ऐसे सर. मतलब तेरे को कितने की पड़ी है बुक? बोला मुझे 500 की पड़ी. मैंने बोला 500 रुपये मैं दे रहा हूँ, तू ये बुक इस बच्चे को दे दे. बोला सर मुझे ना 400 रुपये की पड़ी, मैं भी 100 रुपये का डिस्काउंट करना चाहता हूँ. तो ही गेट मोटिवेटेड फ्रॉम माई थॉट्स. उसने 10 रुपये भी नहीं छोड़ने थे, बट ही गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम माई थॉट दैट विदाउट नोइंग दैट पर्सन आई एम गिविंग 500, तो 100 रुपये तो मैं भी दे ही सकता हूँ. तो उसको वो बुक फ्री में मिल गई. ही थैंक्ड मी. हिज नंबर इज देयर इनटू माय कॉन्टैक्ट. आई विल शेयर द नंबर विद यू पीपल. यू कैन आस्क दिस. दिस इज व्हाट समटाइम यू डू सम सच थिंग्स एंड इट बिकम्स अ मेमोरेबल इंसिडेंट्स. वो कभी बच्चा मुझे भूल नहीं सकता. ही गॉट अ जॉब. अभी वो 2-3 साल पुरानी बात है. ही गॉट अ जॉब समवेयर. अभी प्राइवेट जॉब ही कर रहा है, उसमें वो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है. ही केम टू माई प्लेस विथ अ बर्फी का डब्बा एंड आई जस्ट टुक दैट मच. जितने मेरे फैमिली में मेंबर्स थे उसमें से एक एक करके मैंने 5 बर्फी 4 बर्फी उससे निकाला और बोला बाकी मेरे तरफ से तुम्हारी फैमिली को देना. This is how people remembers you. Become a successful person with moral values too. You may not be successful, but you can become a person who has everything in you.
आप सक्सेस तो बाद में ले लोगे जब आपके शुरुआत में मोरल वैल्यूज होंगे. सिमरन वांट टू से समथिंग, कैन से. हाँ, मैं audible? So we can leave. Sir, you are not audible. Simran, you want to say something, beta? You सर नेक्स्ट क्लास में कह दूंगी कोई. you say whatever you. क्या मैं ऑडिबल? Yeah, you are audible. You are audible, beta. सर नेक्स्ट क्लास में कह दूं? हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. You can tell it in the next class. But next class we are going to do the revision, and I want everybody to be a part of it. Vikhyat, and who was the next one? Bhumi, are you there? Chapter 2, 1 we have done, but 2 Yes, sir. chapter we are going to study. So first, 11th A should definitely be a part of this revision, so that you can get to know किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे. आई विल बी हेल्पिंग यू इनटू दैट, एंड द kids are going to present some PPTs, and they are going to speak about each and every topic. So be a part of it, so that बिना पढ़े भी आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए. ओके बेटा? So God bless you all. Excuse me, sir. Yes बेटा, विख्यात. Sir, will you be watching Tokyo Olympics? What? Sir, will you be watching Tokyo Olympics? Nowadays I'm not. Actually, I told you my father was not well, so I'm so very busy with his works. Sometimes medication, sometimes something else, sometimes something else. Not getting time. Okay, sir. क्रिकेट मैच मेरा फेवरेट नहीं देख पा रहा हूँ. अब आपके पास से उठूंगा तो आई आस्क व्हाट आई हैव टू गिव इट टू हिम, द मेडिसिन, द फूड और द स्नैक्स और व्हाटएवर इट इज. So I'm a bit busy. At least 1 more month I have to pay this, but no problem. This is what a parent can have as an asset. A good son who is helping always. So also you become a good son and a daughter. Bye bye, tata, and sorry for getting Thank you, sir. Your father. sorry.